Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. Welcome back to your EVS class, student. We have completed chapter number 1, that is family. Now, in today's video, we will start our new chapter, and name of the chapter is parts of the body. So student, the name of the new chapter is parts of the body. So our body is also a wonderful living machine. It performs lot of function in our day to day life. Okay, so it can our body is just like a machine, but it is a living machine and it perform different functions. It can move, grow, breathe and reproduce. So students, when we are talking about parts of the body, so first of all I want to discuss with you that when we are talking about the parts of the body, then our body is divided into two groups. Is it clear? There are different, you can say parts भी बोल सकते हो या organs बोलते हैं, ठीक है. There are different organs in our body and these organs do different types of functions. So when we are talking about the body, then student, our body is made up of many small parts, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सेल्स बोलते हैं. इज इट क्लियर? our body is made up of many small parts. Our body is made up of many small parts. Is it clear? Called it cells. So what we say our body is a wonderful living machine. Okay, and it can perform many function. It can hear, see, smell, taste, and our body also grow. Is it clear? Our body also breathe, grow, so move from one place to another, and our body reproduce also. So there are many functions which are done by our body. So now let's understand, our body is made up of very small parts and we say it as a cells. हमारी बॉडी जो बहुत छोटे छोटे पार्ट से बनी हुई है, ठीक है बेटा. हमारी बॉडी बहुत स्मॉल पार्ट से बनी हुई है और इन स्मॉल पार्ट्स को क्या बोलते हैं? सेल्स बोलते हैं. इज इट क्लियर? सो आवर बॉडी इज मेड ऑफ मैनी स्मॉल पार्ट्स called it cells. So or in the other sense you can also say that cells are the building block of the body. Cells are the
cells are the building blocks of the body. Cells are the building blocks of the body. तो और ये जो सेल्स होते हैं ना बेटा, ये डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स के सेल्स भी होते हैं बॉडी में, बहुत डिफरेंट काइंड के सेल्स होते हैं। हमारी बॉडी सबसे स्मॉल पार्ट से बनी है, सेल्स। दैट इज द रीजन सेल इज आल्सो नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। एंड इन आवर बॉडी देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ए सेल्स, और सेम काइंड ऑफ ए सेल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म ए टिश्यू। इज इट क्लियर? हमारी बॉडी में बहुत डिफरेंट काइंड के सेल्स हैं, एंड सेम kind of a cells of the same kinds join together to make a tissue. Cells of the same kind join together to make a tissue. Is it clear? Now see student, and tissues join together to form a organ, ठीक है। सो ये हो गया, डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स हैं हमारी बॉडी में, ठीक है। और सेम काइंड ऑफ सेल जब आपस में ज्वाइन टुगेदर करते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, मेक ए टिश्यू। एंड व्हेन टिश्यू ज्वाइन टुगेदर देन दे मेक ए ऑर्गन, ठीक है। जब टिश्यू ज्वाइन करते हैं तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन। सो व्हेन मैनी ऑर्गन वर्क टुगेदर, जब बहुत से ऑर्गन आपस में वर्क करके कोई स्पेसिफिक फंक्शन को करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। When many organs work together to perform a specific function, that is known as organ system. And due to this only it is possible for our body grow also, we play, we walk, we run, or we are able to do different functions, ठीक है। अब जो बताया इसकी एक छोटी सी रिकैप्चुलेशन करा देता हूँ, जिससे आपको टॉपिक थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने चैप्टर का नाम है पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स हैं जो अलग अलग फंक्शन करते हैं, ठीक है। सो इसलिए सबसे पहले अभी क्या क्या डिफरेंट पार्ट्स है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी बोला है कि our body, parts of the body means our body is made of different parts. So let's understand how our body is made. Is it clear? So student, our body is made up of many small parts, जिसको हमने क्या बोला, सेल्स बोला। इसलिए सेल्स को बिल्डिंग ब्लॉक भी बोला जाता है, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी स्मॉल सेल से बनी है। आवर बॉडी इज मेड ऑफ मेनी स्मॉल पार्ट्स, जिसको हमने क्या बोला, सेल्स। दैट इज द रीजन सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी, ठीक है। और देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स इन आवर बॉडी, ठीक है। हमारी बॉडी सेल से ही बनी है, ठीक है। यही सेल आपस में मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं, और यही टिश्यूज जब आपस में ज्वाइन होते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं। जैसे अभी बहुत से ऑर्गन है हमारी बॉडी में, हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो
जो हमारी बॉडी बनी किससे है, वो सेल से बनी है। दैट इज द रीजन हमारी बॉडी को क्या बोला गया है, सेल्स को क्या बोला गया है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, एंड देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। ठीक है, ये नहीं है कि सारे सेल्स एक ही तरह के, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। अब नेक्स्ट है सेल्स ऑफ द सेम काइंड, वो ज्वाइन आपस में होते हैं तो दे टुगेदर मेक ए टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, एंड व्हेन टिश्यू ज्वाइन टुगेदर तो वो क्या बनाते हैं, ऑर्गन। और जब बहुत से ऑर्गन एक संग फंक्शन करते हैं, कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन मतलब पार्ट ऑफ द बॉडी होता है। ठीक है, जैसे देखो ये हैंड है, ठीक है, हैंड है, इसमें फिंगर है, थंब है, ठीक है, लेग है। सो ये सब क्या है, डिफरेंट ऑर्गन है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी है। ये सब बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट है नाउ, हाँ नाउ स्टूडेंट, ठीक है, अब देखो, और जब हम लोग पार्ट्स ऑफ बॉडी, अब जो डिफरेंट ऑर्गन्स की बात करते हैं, या तो पार्ट, ठीक है, या ऑर्गन, ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द बॉडी या ऑर्गन्स। ऑर्गन्स क्या है, डिफरेंट ऑर्गन्स है हमारी बॉडी में। फॉर एग्जाम्पल देयर आर डिफरेंट ऑर्गन्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में बहुत से ऑर्गन्स हैं। ठीक है, जब हम लोग ऑर्गन्स की बात करते हैं बेटा, तो ऑर्गन्स भी दो पार्ट में डिवाइड है। ऑर्गन्स भी दो पार्ट में डिवाइड है। एक को हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल ऑर्गन, और एक को हम लोग बोलेंगे इंटरनल। एक को हम लोग बोलेंगे इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, सो जो आपके एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं, जिसको आप देख सकते हो अपनी आंख से, जैसे अपनी आईज आप देख सकते हो, नोज है, ये आपका ईयर्स है, आपकी माउथ है, आपके हैंड है, ठीक है, आपका लेग है। तो ये सब ऐसे ऑर्गन्स हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, और इनको एक्सटर्नल ऑर्गन बोला। ठीक है, एक्सटर्नल ऑर्गन के एग्जाम्पल ले लिए, आईज, नोज, ईयर, हैंड्स, लेग्स, एक्स्ट्रा। और जब इंटरनल ऑर्गन्स, वो ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। हमें पता है कि हमारे पास एक, हमारी बॉडी में लंग्स हैं, हार्ट है, किडनी है, स्टमक है। सो ये चीज़ें पर हमें दिखाई नहीं देती, ये हमारी बॉडी के अंदर है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स। इनके एग्जाम्पल हो गए हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, एक्स्ट्रा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल दे दिए। ठीक है, पार्ट्स ऑफ बॉडी की जब हम लोग बात करते हैं बेटा, तो जो बॉडी के पार्ट्स हैं, दैट ऑर्गन्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, दो ग्रुप में ये डिवाइड है। एक को हमने क्या बोला, एक्सटर्नल ऑर्गन्स, और एक को हमने क्या बोला, इंटरनल ऑर्गन्स। ठीक है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो होते हैं, दोज ऑर्गन विच वी आर एबल टू सी विद आवर आईज, हमारे आंखों से दिखते हैं। ठीक है, और इंटरनल ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन विच वी आर नॉट एबल टू सी विद आवर आईज। ठीक है, दैट इज नोन एज इंटरनल ऑर्गन्स।
और देखो एक्सटर्नल ऑर्गन इंटरनल ऑर्गन में एक डिफरेंस और है, ठीक है। जो एक्सटर्नल ऑर्गन होते हैं दे वर्क इंडिविजुअली, वो कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। जो आपके एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं दे वर्क इंडिविजुअली, उनका कोई एक अपना पर्टिकुलर फंक्शन होता है, ठीक है, वो बाकी। और जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं ये क्या, ये इंडिविजुअली वर्क नहीं करते, दे ऑल वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। इसमें कई ऑर्गन मिलके काम करते हैं कोई चीज को पूरा करने के लिए, लेकिन जो आपके एक्सटर्नल ऑर्गन्स होते हैं वो इंडिविजुअली फंक्शन करते हैं, ठीक है। अब जैसे एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, ठीक है, अब हमारी बॉडी एक लिविंग मशीन है, सो और क्योंकि हमारी बॉडी के पास क्या सेंस ऑर्गन्स भी हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के पास क्या है सेंस ऑर्गन्स भी हैं, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ऑर्गन में दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक्सटर्नल ऑर्गन्स और इंटरनल ऑर्गन। एक्सटर्नल ऑर्गन जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं, ऑर्गन्स वी कैन सी विद आवर आईज आर नोन एज एक्सटर्नल ऑर्गन्स। इसके एग्जाम्पल जहाँ लिखे ही हैं मैंने, ठीक है, आईज नोज ईयर हैंड लेग्स एक्स्ट्रा, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका एक्सटर्नल ऑर्गन्स। और इंटरनल ऑर्गन्स इसके बाद रब करके इंटरनल भी लिख देते हैं। इसके बाद आपका आ गया इंटरनल which we cannot see with our eyes, ठीक है। इसके बाद जी आ गया आपका इंटरनल ऑर्गन्स विच वी कैनॉट सी विद आवर आईज, और इसके एग्जाम्पल ये आ गए हार्ट, लंग्स, किडनी, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सब के सब इसके क्या है एग्जाम्पल, ठीक है। ऑल दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ऑर्गन में एक्सटर्नल इंटरनल ऑर्गन पढ़ा दिया तुम्हें। अब देखो एक्सटर्नल ऑर्गन में जितने भी ऑर्गन हम स्टडी करेंगे बेटा, ये इंडिविजुअली वर्क करते हैं, इनका कोई अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है, ठीक है। लेकिन इंटरनल ऑर्गन्स में जो ऑर्गन्स वर्क करते हैं उसमें क्या होता है, मेनी ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। बहुत से ऑर्गन मिलके काम करते हैं कोई स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अब नाउ सी, अब देखो, अब हम लोग डिस्कस करेंगे आवर सेंस ऑर्गन्स, आवर सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। देखो there are lot of things present in our surroundings, so how we are able to know, ठीक है, हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सी चीजें हैं,
तो इन सारी चीज़ों के बारे में हमें कैसे पता चलता है? ड्यू टू आवर सेंस ऑर्गन्स। कैसे पता चलता है बेटा? हमारे सेंस ऑर्गन से हमें सारी अपने अगल बगल की चीज़ों का पता किससे चलता है? सेंस ऑर्गन, क्योंकि हमारे डिफरेंट सेंस ऑर्गन हैं एंड दीज सेंस ऑर्गन परफॉर्म्ड डिफरेंट फंक्शंस। ये सारे हमारे जो सेंस ऑर्गन हैं, ये 5 सेंस ऑर्गन्स हमारी बॉडी में हैं और ऑल दीज सेंस ऑर्गन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। सो वी नो अबाउट दिस वर्ल्ड, हमें पूरे वर्ल्ड, वी नो अबाउट दिस ऑल वर्ल्ड विद आवर सेंस ऑर्गन्स। ओके, द मेन सेंस ऑर्गन इन आवर बॉडी, और मेन सेंस ऑर्गन्स क्या है बेटा हमारे? आईज, ईयर, आई, ईयर्स, नोज, टंग, टंग एंड स्किन। ठीक है, आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, दीज आर द 5 मेन सेंस ऑर्गन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ऑल दीज सेंस ऑर्गन आर connected to the brain. All these sense organs are connected all these sense organs are connected to the brain, through nerves. ठीक है, बिकॉज देखो, ये जितने सारी चीज़ों का पता हमारे सराउंडिंग्स में, कोई भी चीज़ है, कुछ भी, सब सारी चीज़ों का पता किससे चलता है? ड्यू टू आवर सेंस ऑर्गन। एंड ये सारे सेंस ऑर्गन्स किससे कनेक्टेड है? टू द ब्रेन, क्योंकि ब्रेन क्या है? ब्रेन इज द ब्रेन कंट्रोल द होल बॉडी। ठीक है, जो मेन पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम कौन करती है? ब्रेन करती है। ठीक है, ब्रेन कंट्रोल द बॉडी, ब्रेन कंट्रोल द बॉडी। ठीक है, ह्यूमन बॉडी का सबसे मेन जो पार्ट है वो क्या? ब्रेन है। जितना भी कोई भी हम एक्टिविटी बेटा हम कर रहे हैं, एनी एक्टिविटी वी डू, ऑल दीज एक्टिविटीज के लिए जो भी एक्शन हम लोग परफॉर्म करते हैं, ऑल द डिसीजन, एवरीथिंग दैट इज टेकन बाय द ब्रेन, दैट इज टेकन बाय द ब्रेन। आपको बड़ा अजीब लगेगा सुनने में, लेकिन बेटा देखो, ये सारे सेंस ऑर्गन क्या ब्रेन से अटैच है। ठीक है, सो ये सबके सब सेंस ऑर्गन ये नर्व्स के थ्रू ब्रेन से कनेक्टेड है, नर्व सेल्स के थ्रू। तो ये किसको मैसेज भेजते हैं? ब्रेन को मैसेज देते हैं। फिर ब्रेन डिसाइड करता है कि व्हाट दे हैव टू डू। लेकिन ये एक्शन इतना फास्ट होता है, अगर आप कहानी की तरह सुनोगे तो आपको बहुत बड़ा लगेगा। ठीक है, जैसे ये सामने टेबल है, अगर मुझे डस्टर को उठाना है तो मैंने डस्टर की ओर देखा, तो अब इसकी पिक्चर मेरे आईज में आई। अब ये मैसेज बनके सेंड होके ब्रेन के पास गई। अब कोई भी चीज़ को उठाना है, होल्ड करना है, तो उसका काम हम किससे करते हैं? हैंड से करते हैं। ठीक है, तो मैंने देखा
डस्टर को अपनी आई से। अब इसकी पिक्चर मैसेज बन के गई मेरे ब्रेन में कि इस डस्टर को होल्ड करना है, उठाना है, तो व्हाट वी हैव टू डू। तो वहाँ से ब्रेन को पता है कि कोई भी चीज़ को कैच करने के लिए होल्ड करने का वर्क कौन करता है, हैंड करता है। तो अब ब्रेन ने वहाँ से मैसेज बोला हैंड को, तो ये देखो मैंने इसे पिक कर लिया। अब ये कहानी की तरह सुनने में देखो बेटा बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ईच एंड एवरी एक्शन विच इज परफॉर्म बाई आवर बॉडी दैट इज ड्यू टू द ब्रेन। ये जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, दैट इज योर आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, ये पांचों के पांचों सेंस ऑर्गन्स हैं, दे आर कनेक्टेड टू द ब्रेन थ्रू नर्व सेल्स। दे आर कनेक्टेड टू द ब्रेन, ये सब ब्रेन से कनेक्टेड है थ्रू नर्व सेल से, ठीक है। दैट इज अ रीजन ब्रेन को कंट्रोलिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी बोला जाता है। ब्रेन क्या है, कंट्रोलिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ऑल द डिसीजन, ऑल द एक्टिविटी विच वी परफॉर्म, ऑल द एक्शन, ऑल द डिसीजन दैट इज टेकन बाय द ब्रेन, ठीक है। अगर आपको, ठीक है, सब के सब डिसीजन क्या लेती है, ब्रेन लेती है। ये बात बिल्कुल दिमाग में रख लो। कुछ भी हम करते हैं, अगर मान लो आपको कॉपी में लिखना है, सर ने बोला नोट डाउन द थिंग्स इन द कॉपी, तो आपको लगता है ना कि नोट हम हाथ से करते हैं। नो, मैंने क्या कहा, सारी चीजें, जैसे ही आपके सर ने बोला नोट डाउन इन द कॉपी, तो उसकी साउंड आपने किससे सुनी, ईयर से। ईयर से मैसेज कहाँ गया, सीधे ब्रेन में। सर तो लिखने के लिए बोल रहे हैं, अब ब्रेन ने वहां से मैसेज सेंड किया, किसको, हैंड को, क्योंकि हम अपने हैंड में ही पेंसिल को पकड़ के लिखने का काम करते हैं। अब देखो ये कहानी की तरह बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ऐसा ही होता है स्टूडेंट, ठीक है। सब कुछ ऐसे ही होता है। सारे डिसीजन कौन लेता है, ब्रेन। ब्रेन हमारा कंट्रोलिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी है। ऑल द डिसीजन इज टेकन बाय द ब्रेन। जो चीजें, बातें, अब देखो ये बात सुनने में बहुत बड़ी लग रही है। सर से टू द स्टूडेंट नोट डाउन ऑल द थिंग्स फ्रॉम द बोर्ड। सो ये सर ने बोला, तो किस सेंस ऑर्गन ने इसको पता चला, ईयर ने सुना, क्योंकि साउंड ईयर से सुनते हैं। ये तुरंत मैसेज बन के ब्रेन में गया, और मैसेज था कि लिखने के लिए सर बोल रहे हैं, तो तुरंत ब्रेन से मैसेज आया, किसको, हैंड को आया, स्टार्ट राइटिंग। सो ये इसलिए हमारी ब्रेन इतनी फास्ट काम करती है, इतनी फास्ट काम करती है कि हम सोच भी नहीं सकते, ठीक है। सो ब्रेन क्या है, कंट्रोलिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अगर आप एक स्टेप भी अपने चल रहे हो, तो वो भी आप अपने से नहीं चल रहे हो, उसको सबको किसने कंट्रोल कर रखा है, ब्रेन ने कंट्रोल कर रखा है। कोई भी चीज होती है, ब्रेन टेक द डिसीजन, ब्रेन बताता है, और हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट वो क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट उसको क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अब ये हो गया। अब आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, ये सब है हमारे एक्सटर्नल ऑर्गन्स, ठीक है। तो आज की वीडियो में पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जब हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया स्टूडेंट, तो हमने पहले क्या बताया, हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह है, पर डिफरेंस क्या है, ये एक लिविंग मशीन है, ठीक है। ये एक लिविंग मशीन है, हमें सुनाई भी देता है, हम देख भी सकते हैं, हम बोल भी सकते हैं, हम स्मेल भी कर सकते हैं, हमारे अंदर फीलिंग भी है, हमारी ग्रोथ भी होती है, हम ब्रीथ भी कर सकते हैं, हम अपनी तरह के बच्चों को जन्म भी दे सकते हैं, रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। सो ये डिफरेंस है। जैसे अब कार है, बस है, एरोप्लेन है, ट्रेन, ये सारी मशीनें हैं। इसी तरह हमारी बॉडी भी मशीन है, बट हम लोग क्या है, लिविंग है। हम लोग मैन मेड नहीं है, हम लोग लिविंग मशीन्स हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई। हमारी बॉडी भी मशीन की तरह है, उसको भी रेस्ट की जरूरत होती है, लेकिन ये एक वंडरफुल लिविंग मशीन है, ठीक है। ये एक वंडरफुल लिविंग मशीन है, ठीक। उसके बाद मैंने बताया कि जब हम पार्ट्स ऑफ द बॉडी की बात करते हैं, तो हमारी बॉडी सबसे छोटे यूनिट से बनी है। वो क्या था, सेल्स।
इसीलिए सेल्स को बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी भी बोला जाता है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।